everyone, today we will begin with the unit 2. Equisetum and terrace इस unit के दो topics हैं. First we'll start equisetum and we will cover it in two videos. One video will cover the structure and another will be of reproduction and life cycle. So let's start. Equisetum is also known as horse tails or scouring rushes. Scouring rushes because इसकी जो epidermal cells हैं वो encrusted हैं with silica, which gives it a rough appearance, so hence it is called scouring rushes. Now the systematic position: divisions: Sphenophyta, class Calamopsida, order Equisetaceae, family Equisetaceae, and genus Equisetum. Now let's come to the occurrence. The Equisetum genus has about 25 species. They are commonly called horsetails or scouring rushes. इसकी जो it is distributed all over the world except Australia and New Zealand, and common Indian species are Equisetum arvens, diffusum, maximum, elongatum, debile, etc. And now let's come to the plant body. So this is the plant body. Plant body is herbaceous, perennials with widely creeping main branch, much branched rhizomes from which arise erect aerial branches. अब plant body में ये देखो यहाँ पर है ये sterile branch. This is the strobilus and node, internode, leaf sheath, fertile branch, rhizome, tuber and root. Now let's read. All the species of Equisetum are herbaceous, मतलब herb like plants हैं. Perennials, पूरे साल इनकी growth होती है. With widely creeping much branched rhizomes from which arise erect aerial branches. Rhizome से erect और aerial branches arise होती हैं. Next is usually the aerial shoots are annual but may be perennial. Height is 10 to 60 centimeter. And okay, now let's go, study external morphology, or we can say external characters. Let's start with the देखो plant body differentiated है 3 parts में: stem, roots and leaves. First we'll cover the stem. ये हम फिगर से ही पढ़ते हैं. जो मेन स्टेम है वो अंडरग्राउंड है, क्रीपिंग है एंड पेरिनियल राइजोम उस पर प्रेजेंट है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड internodes. There is a whorl of small scaly leaves at each node. Like we can see here, यहाँ पर scaly leaves है हर node पर. And the stems are cylindrical, stiff and jointed with distinct nodes and internodes. The number of ridges on the internode correspond to the number of leaves at a node. जितने internode पे ridges present होंगे उतने ही नंबर ऑफ लीव्स एक नोड पे प्रेजेंट होंगे. द टिश्यू जस्ट अबव द नोड इज मेरिस्टेमेटिक एंड प्रोटेक्टेड बाय लीफ शीथ. जो टिश्यू नोड के ऊपर है वो मेरिस्टेमेटिक होगा और लीफ शीथ से प्रोटेक्टेड है. दिस इज द लीफ शीथ. नेक्स्ट वी विल देखो बुक में से भी एक बार रीड कर लेते हैं. अंडरग्राउंड क्रीपिंग पेरिनियल राइजोम, नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिफ्रेंशिएटेड है. स्केली लीव्स है, ईच नोड पे वर्ल है. स्केली वर्ल मतलब कि ग्रुप में प्रेजेंट है स्केली लीव्स हर नोड पे. एंड अ ब्रांच बड इज फॉर्म ऑल्टरनेट टू ईच स्केल लीफ एट द नोड एंड दीज बड डेवलप इनटू इरेक्ट एरियल ब्रांचेस. एरियल स्टेम्स आर एवरग्रीन एंड पेरिनियल. नेक्स्ट, the stems are cylindrical, stiff and jointed with distinct nodes and internodes. The internodes are long, hollow and marked with longitudinal ridges. अब यहाँ देखो डायग्राम में, this is structure of a part of magnified aerial stem with ridges and grooves. Grooves है, ridge है, leaf sheath है. internode पे जितने ridges होंगे उतने ही node पर हमारे पास leaves होंगे. ठीक है. द टिश्यू जस्ट अबव द नोड इज मेरिस्टेमेटिक एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द लीफ शीथ. द इंटरनोड्स इंक्रीज इन लेंथ बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ओके, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है.
एग्ज़ाम के लिए. नेक्स्ट वी हैव द लीव्स. लीव्स आर स्मॉल, सिंपल, अनवेन्ड, स्लेंडर एंड स्केल लाइक. यहाँ पे देखिए लीव्स, ठीक है. सो स्मॉल, सिंपल है, अनवेन्ड है, कोई वेन्स प्रेजेंट नहीं है, स्लेंडर है, स्केल लाइक है, अरेंज्ड इन व्हर्ल्स. Leaves are without chlorophyll and mostly short-lived, and so the function of photosynthesis is performed by the stem and its branches. ठीक है, जो फंक्शन ऑफ स्टेम है, फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो स्टेम और ब्रांचेस करेंगी, लीफ नहीं करते बिकॉज वो स्केली है और उनमें कोई क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट. नेक्स्ट वील कम टू द रूट. ऑल द रूट्स ऑन द मेच्योर स्पोरोफिटिक प्लांट आर एडवेंटिशियस. ठीक है, सारी रूट्स इसमें एडवेंटिशियस है मेच्योर प्लांट पे. The roots are slender and fibrous and arise from the bases of branch primordia at each node of rhizome. राइजोम के नोड के बाद जहाँ पे वो ब्रांच हो रहा है वहीं पर रूट्स निकल रही हैं. ठीक है, जहाँ देखो जहाँ पे भी ब्रांचिंग है वहाँ पर हमारे पास नोड्स प्रेजेंट है. दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. दिस इज अबाउट द रूट. नाउ विल मूव टू इंटरनल स्ट्रक्चर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्टेम का जो स्ट्रक्चर है डिफर्स इन डिफरेंट रीजन. द इंटरनल स्ट्रक्चर शो अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोफिटिक एंड हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर. दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, जीरोफिटिक लैंड के लिए एंड हाइड्रोफिटिक फॉर द वाटर. अब पहला हमारे पास डायग्राम है, ये सब काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है PYQs में. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डायग्राम. TS ऑफ एरियल स्टेम थ्रू इंटरनोड. इंटरनोड रीजन से हमारे पास TS है स्टेम, एरियल स्टेम का. तो सबसे बाहर देखो हमारे पास है, ये पहले एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस पे सिलिशियस थिकनिंग, सिलिका की डिपोजिशन है जिससे कि इसको हम स्कावरिंग रशेस नेम देते हैं. एंड फिर हमारे पास है स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स एंड क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स. अब जो फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो स्टेम कर रही है, तो क्लोरोफिल स्टेम में ही प्रेजेंट होंगी इन क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स. ओके ओके, सो जो आउटर सरफेस है देखो वो वेवी है इन आउटलाइन. एपिडर्मिस में इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट हैं, सिंगल लेयर्ड है. सिलिका की इंक्रस्टेशंस है इसकी अपर सरफेस पे. और उसके बाद है हमारे पास स्टोमेटा बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल रिजेस. के जो लॉन्गिट्यूडनल रिजेस हमने पढ़े थे उनके बीच में हमारे पास स्टोमेटा प्रेजेंट है. जो कॉर्टेक्स है सेकेंड पार्ट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू आउटर एंड इनर. तो जो आउटर है फर्दर डिवाइडेड है स्क्लेरेनकाइमेटस एंड क्लोरेनकाइमेटस. ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस डबल लेयर्ड हो गई. क्लोरेनकाइमेटस में क्लोरोफिल्स प्रेजेंट है एंड इनर कॉर्टेक्स हमारे पास पेरेनकाइमेटस है. दिस इज़ द इनर कॉर्टेक्स. उसके बाद है हमारे पास वेलिक्यूलर कैनाल्स. ये रन करते हैं नोड टू नोड बिलो द स्टेम फरो एंड ऑल्टरनेट इन पोजीशन विद द वैस्कुलर बंडल्स. दे ऑलवेज कंटेन एयर, दिस फॉर्म एन एरेटिंग सिस्टम. अब ये वैस्कुलर बंडल्स के ऑल्टरनेट होंगे प्रेजेंट. जैसे यहाँ वैस्कुलर बंडल्स है तो ये इस साइड प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स होंगे, ये उसके नेक्स्ट साइड प्रेजेंट होंगे. वेलिक्यूलर कैनाल्स का फंक्शन क्या है, एरेटिंग सिस्टम फॉर्म करते हैं ये, इनमें हमेशा एयर प्रेजेंट होती है. उसके बाद हमारे पास आ गई एंडोडर्मिस एंड नेक्स्ट इज़ द पेरिसाइकिल. फिर हमारे पास है स्टील वैस्कुलर बंडल, अ रिंग ऑफ स्मॉल वैस्कुलर बंडल्स सराउंडिंग अ लार्ज पिथ कैविटी. दिस इज पिथ कैविटी. नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ लीव्स. अब जो नंबर ऑफ लीव्स थे वो जितनी रिजेस इंटरनोड में प्रेजेंट होंगी उसके इक्वल थे. अब यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स के इक्वल होंगे वैस्कुलर बंडल्स. ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स जो हैं कॉन्जॉइंट हैं, कोलेटरल है एंड इंडार्क है. कैम्बियम इसमें एब्सेंट है. जाइलम जो है वी शेप्ड है, सिस मेटाजाइलम. जाइलम वी शेप्ड है. पिथ जो है हॉलो सेंट्रल केनाल एट इंटरनोडल रीजन. हॉलो है, सेंट्रल केनाल है, इंटरनोड रीजन पे ये प्रेजेंट है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द TS of aerial stem. These are the notes of the topic.
एक पॉइंट हमारा रह गया था सिफोनोस्टील। इसमें जो स्टीलर सिस्टम है वो सिफोनोस्टील टाइप का है, मतलब कि सेंटर में एक हमारे पास पिथ प्रेजेंट है, उसको हम सिफोनोस्टील बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अभी हमने पढ़ा कि जो स्टेम है वो दोनों कैरेक्टर शो करती है, हाइड्रोफिटिक भी और जीरोफिटिक भी। तो हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स क्या है? वैस्कुलर बंडल्स रिड्यूस्ड हैं, प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर एयर कैनाल्स इन द फॉर्म ऑफ वेलिकुलर कैनाल्स, हॉलो सेंट्रल पिथ कैविटी है, और कैरिनल कैनाल्स फिल्ड विद वाटर। ये जाइलम के प्लेस पे प्रेजेंट होंगे। जीरोफिटिक कैरेक्टर्स में थिक क्यूटिकल है, जो इवेपोरेशन ईजिली नहीं होगी, तो जीरोफिटिक एडेप्टेशन है ये। फोटोसिंथेटिक स्टेम विद क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स, संकन स्टोमेटा, लीव्स रिड्यूस। ये मतलब जीरोफिटिक कैरेक्टर्स में बेसिकली क्या है, ट्रांसपिरेशन कम हो, वो सारे कैरेक्टर्स इसमें अडेप्टेशंस प्रेजेंट है। नाउ दिस इज अ कंपैरिजन टेबल थ्रू नोडल एंड इंटरनोडल रीजन, यू कैन रीड इट इफ़ यू वांट। अब हमारे पास है राइजोम, कि हमारा टीएस ऑफ अंडरग्राउंड राइजोम। तो इसमें स्टोमेटा एब्सेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रूट की तरह, मतलब रूट इससे निकलती हैं। क्लोरेनकाइमा कॉर्टेक्स इज ऑल्सो एब्सेंट। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज वेल डेवलप्ड है। पिथ कैविटी एंड अदर कैविटीज आर वेरी मच रिड्यूस्ड। तो ये हमारा इसका टीएस हो गया राइजोम का। क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, वेलिकुलर कैनाल्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम एंड कैरिनल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टीएस ऑफ रूट। तो इसका ये बेसिकली सर्कुलर है आउटलाइन में, है ना, हमें डायग्राम में दिख रहा है। इंटरनली डिफरेंशिएटेड है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील में। तो एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट है, सिंगल लेयर है विथ थिन वॉल सेल्स विच गिव राइज टू रूट हेयर्स, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिलीफेरस लेयर। पिलीफेरस लेयर क्यों? क्योंकि ये हेयर्स को अराइज करती है अपने पास से। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स, मैनी लेयर्ड है विथ आउटर कॉर्टेक्स लेयर्ड लिग्निफाइड and form exodermis, while the inner cortex consists of parenchyma with intercellular spaces। तो ये outer cortex हो गई, exodermis जो lignified है, और फिर inner cortex है जिसमें parenchymatous cells है और intercellular spaces उसमें present है। नेक्स्ट सो जो इसमें पेरिसाइकिल है वो एब्सेंट है या पुअरली डेवलप्ड है। एंडोडर्मिस इज़ टू लेयर्ड विथ टेंजेशनली इलोंगेटेड सेल्स, और इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर वेरी क्लियर इन द आउटर एंडोडर्मिस एंड एब्सेंट इन इनर एंडोडर्मिस। ठीक है, स्टील सिस्टम इसमें ट्राइआर्क टू हेक्सार्क है विथ 3 to 6 प्रोटोजाइलम strands surrounding a central metaxylem element. Phloem bundles alternate with xylem bundles. The smaller roots are diarch. Pith is absent. So this was all about the internal and external structure of equisetum. इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दैट इज़ दिस वन,